What we have seen in last session? Yes, Templates and template. Okay, template, a template tag. Correct. How to inject the dynamic content from view to HTML page. HTML page. Correct. Yes, Yes sir. or no? So here we can inject the whatever the dynamic content from view to template is in terms of what data dictionary. Correct. We can pass dictionary. So this dictionary we can display on template page by using template tag. Template tag. Okay. So here again, view stands for business. That is nothing but the Python. Okay, this template is nothing but the presentation. That is nothing but the HTML, CSS, images. Okay, and the yum stands for model. So this model is responsible to configure the database or to manage the database. Correct. But the problem is the Django written in Python. Database understand what? Suppose we have Oracle, okay, or we have MySQL. So this database understand which language? Language? SQL. SQL. equal. But we are writing a Python script or Python code inside the Django. So to convert this Python to SQL, we have the number of ways ऑलरेडी प्रोविजन दिया है जंगो में. हमें SQL का कोड का कोई लेना देना नहीं है. We just focus on Python only. By using Python, we can create table, we can create a field, we can create a relation, whatever. जो कुछ आपको SQL में करना है वो सब हम Python में कर सकते हैं. Okay, so the model stands for database. Okay, so we can write the database logic inside the model.py. Okay, अब every application जो कुछ application लोगे तो every application having the backend and front end. So this backend is compulsory. It's not optional. Without backend or without database, that application will not be work. That means smoothly we can say, or that application is incomplete without database. So Django itself provide. Django खुद आपको अगर आपके पास database नहीं है कोई इशू नहीं. Django itself provide a default database which is nothing but the SQLite 3. लिख लो ये इंटरव्यू में पूछते हैं which database Django provide to SQLite 3. ओके यहाँ पे ये रह गया. ओके बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है ना ठीक है कोई इशू नहीं. Django का खुद का एक डेटाबेस है बाय डिफॉल्ट डेटाबेस उसको बोलते हैं SQLite 3. ठीक है. ओके ये तो हो गया. आपने टेम्पलेट क्रिएट किया, आपने व्यू का कोड लिखा. ठीक है. आपने टेम्पलेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज MySQL. ओके यहाँ पे लिखता हूँ model.py. यहाँ पे लिखता हूँ views.py और यहाँ पे हमारा टेम्पलेट है टेम्पलेट्स. ओके तो आपने टेम्पलेट क्रिएट किया, फ्रंट एंड क्रिएट किया, कोई इशू नहीं. ओके एक सेकंड ना एक सेकंड.
Okay, so here the template. Okay, so we have written template, we have written views. Now we need the connection first. जब भी कभी आप कुछ Django एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है तो we need a database configuration. So we have this Django application. So we need to connect this application with the MySQL database. So we have configuration file. So here I'll just write down. Just a minute. Okay, so in suppose I'll take the city example. So here in setting we have this database configuration. This database configuration. Okay, so here this database configuration. So you can see in backend we have default database. कौन सा ये? SQLite 3. Django DB backends कौन सा ये? SQLite 3. ओके, कोई इशू? डिफॉल्ट डेटाबेस कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है? सेटिंग डॉट पी वाई में डेटाबेस नाम का एक डिक्शनरी है, उसके अंदर ये पूरा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन है. तो जब भी कभी आपने डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो हमें कुछ कुछ ये लगेगी, थिंग्स लगेंगे. कौन कौन से लगेंगे? तो पहला है इंजन. कौन सा है इंजन? मीन्स हम कौन सा यूज कर रहे हो. हम ओरेकल यूज कर रहे हैं, माइस्क्यूएल. सपोज मैं माइस्क्यूएल यूज करूँ, यहाँ पे वी कैन से द नेम ऑफ द डेटाबेस इंजन. ओके, हियर नेम ऑफ डेटाबेस इंजन. ठीक है, उसके बाद में आपका डेटाबेस का नाम, आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है अंदर. ओके, डेटाबेस क्रिएट, डेटाबेस नेम. नेम तो कुछ सपोज डेटाबेस क्रिएट किया, सपोज मैंने किया है बैंक का डेटाबेस, बैंक डेटाबेस. करेक्ट. उसके बाद में आपका यूजर नेम, अगर उसको कनेक्ट करना है तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड तो लगेगा. यूजर नेम, अगर यूजर नेम सपोज मेरा रूट है, ठीक है, उसके बाद में उसका पासवर्ड, पासवर्ड वो भी सपोज मैंने बाय डिफॉल्ट रूट किया है, रूट. ठीक है, अगर वो डेटाबेस अगर सपोज अब ठीक है, मेरा यही लैपटॉप में जाऊंगा, एप्लीकेशन चल रहा है और इसी में मेरा डेटाबेस है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं. बाय डिफॉल्ट वो होस्ट मेरा ये भी लोकल होस्ट पे है, ये लोकल होस्ट पे, कोई इशू नहीं होस्ट देने के. लेकिन अगर मेरा जाऊंगा एप्लीकेशन यहाँ पे है मेरे लैपटॉप में, और मेरा जो डेटाबेस है वो कहीं AWS पे है, AWS, तो मुझे AWS पे मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है और उसमें मेरा होस्ट है, तो इसका मुझे होस्ट नेम, दैट मीन्स IP एड्रेस देना पड़ेगा कि किस होस्ट पे वो चल रहा है. तो here we can pass this host. Here we can specify the IP address. IP address. ठीक है, उसके बाद में उस डेटाबेस अभी अभी सपोज वो पर्टिकुलर लैपटॉप, वो पर्टिकुलर सर्वर पे चल रहा है, तो उस सर्वर पे कौन से पोर्ट पे चल रहा है? पोर्ट इज नथिंग बट प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन. तो वहां पे कौन से पोर्ट पे चल रहा है? तो पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर. तो हियर दिस पोर्ट नंबर पे चीजें हमें लगेंगी अगर डेटाबेस आपको Django के साथ में कॉन्फ़िगर करना है. ये जस्ट ओनली द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कनेक्शन पार्ट, कनेक्शन स्टैब्लिश करना है ना आपको. तो इतनी चीजें, इंजन, डेटाबेस का नाम, रूट. यस, स्टूडेंट वेटिंग पे. so these are the things required to connect your application with what? Any database. कोई इशू? नो सर. ओके, देखो कभी भी आप डेटाबेस के साथ में काम करोगे ना, देखो याद रखो, तो आपको पहली बात तो डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए. अभी डेटाबेस नाम सपोज यहाँ पर एक डेटाबेस है, सपोज माइस्क्यूएल. ध्यान से देखो हम क्या बोल रहा हूँ, कैसे रहता है रियल टाइम में. यहाँ पे सपोज ये डेटाबेस है पूरा, सपोज ये माइस्क्यूएल है, माइस्क्यूएल, माइस्क्यूएल. ठीक है, इसके अंदर अगर सपोज हम कंपनी का डेटाबेस ही कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? HR का डेटाबेस अलग है, एम्प्लॉय का अलग है, यहाँ पर क्लाइंट का डेटाबेस अलग है. तो ये एक डेटाबेस होगा, डेटाबेस. सपोज यहाँ पे HR का डेटाबेस यहाँ पे है, यहाँ पे shit, क्या यार, एक स्टूडेंट लोग ना यार सही में
ओके, सो यहाँ पे एचआर का डेटाबेस हो गया। ओके, एचआर का, उसके बाद में यहाँ पे सपोज ये हमारा एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय का ईएमपी का, और ये सपोज ये अपना क्लाइंट का है, क्लाइंट। तो ये हमारा फिजिकल डेटाबेस है, बोलते तो ये कंप्लीट डेटाबेस है। उसके अंदर हम लॉजिकल पार्टीशन करते हैं डेटाबेस, लॉजिकल डेटाबेस। तो यहाँ पे एचआर रिलेटेड आएगा। फिर इस एचआर के डेटाबेस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टेबल क्रिएट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेबल। तो यहाँ पे एचआर का मीन्स यहाँ पे पेरोल का टेबल रहेगा, यहाँ पे फाइनेंस का रहेगा, कुछ है सपोज, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेबल क्रिएट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा आपको? अगर टेबल क्रिएट करना है तो डेटाबेस, उसके पहले डेटाबेस। उसका ये अभी डेटाबेस क्यों है, इसको स्कीमा भी बोलते हैं, लॉजिकल स्कीमा भी बोलते हैं। तो इसका यूज क्या होता है कि एग्जैक्टली आपको वो टेबल को एक्सेस करना है तो यू नीड टू फर्स्ट एक्सेस दी डेटाबेस। सपोज एचआर के अंदर पेरोल है, तो मैं इसको इसको कैसे करूंगा? आपने अभी तक ऐसा ऐसा देखा होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है। आपने फिजिकल डेटाबेस में ही अपना टेबल बना दिया, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो अगर सपोज वहां पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर अगर सपोज पर्सनल डिटेल्स है, तो यहाँ पे कैसे आएगा? ईएमपी डॉट पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल पर्सनल डिटेल्स वाला टेबल, इज करेक्ट वे। रियल टाइम में ऐसा ही मिलेगा आपको। फर्स्ट नेम इज नथिंग बट द स्कीमा नेम, और वी कैन से लॉजिकल डेटाबेस नेम। तो ये जो डेट टेबल है ये किसके अंदर है? तो ये हमारा ईएमपी स्कीमा के अंदर। तो इससे मैनेज करना इजी हो जाता है। समझ में आया क्या? अगर मैं पूरे के पूरे टेबल ये डायरेक्टली माई SQL में अंदर बना देता हूं तो वो मैनेज करना इजी होगा क्या? नो। यहाँ पे सब्जेक्टिव वाइज डेटा बनाया, इसको इन शॉर्ट हम डेटा मार्ट भी बोल सकते हैं इसको, सब्जेक्टिव डेटा। दैट मींस ये पूरे के पूरे टेबल बिलोंग्स करते हैं एचआर डेटाबेस को, ये पूरे के पूरे टेबल बिलोंग करते हैं इस एम्प्लॉय को। यहाँ पे जो कुछ टेबल रहेंगे वो क्लाइंट को बिलोंग करेंगे। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर इसमें अगर सेम नाम के टेबल भी रहा, इधर सपोज पर्सनल डिटेल्स है, इधर भी पर्सनल डिटेल्स है, तो भी वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये पर्सनल डिटेल किसके अंदर है? तो एम्प्लॉय के अंदर। इसको एक्सेस करना है तो ईएमपी डॉट पर्सनल डिटेल्स, इसको एक्सेस करना है तो क्लाइंट डॉट पर्सनल डिटेल्स। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, मैनेज करना भी इजी हो जाता है। और ये कॉन्सेप्ट ये मेरा नहीं है, बोलते ये मेरा सब्जेक्ट का नहीं है, ये डेटाबेस का है एक्चुअली। लेकिन ठीक है, मैं इसमें आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये बोलना चाहिए, तो उसके लिए मैंने डिस्कस किया। समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर। ओके, तो इन शॉर्ट इसको हम स्कीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्कीमा। अभी स्कीमा क्या रहता है कि सर लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, लॉजिकली डिजाइन करते हैं। तो ये लॉजिकली डिजाइन किया है हमें, हम हमारा कंपनी का डेटाबेस, तो हमने क्या किया, एक चार के डेटाबेस बनाया, ईएमपी बनाया, क्लाइंट बनाया, फिर उसके अंदर हमने टेबल बनाया। और टेबल में जो भी डेटा स्टोर करते हैं हम उसको रिलेशनल डेटा बोलते हैं, या उसको स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। ओके, टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। जेसन के फॉर्म में, जैसे मोंगोडीबी हो गया, पोस्टग्रे हो गया, वो जेसन के फॉर्म में करता है तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। ओके, और जो कंप्लीटली टेक्स्ट डेटा बोलते एकदम पैराग्राफ वगैरह वगैरह, तो उसको कंप्लीटली सॉरी जेसन के फॉर्म में करते हैं, उसको सेमी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जैसे रॉ डेटा गया वो, जैसे डेटा वेयर हाउस हो गया, उसका कुछ पार्ट हो गया, तो उसको अनस्ट्रक्चर, कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर डेटा है। और जांगो के साथ में आप स्ट्रक्चर डेटा भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डेटाबेस अनस्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं, इतना फ्लेक्सिबल है। कोई इशू यहाँ तक? नो सर, नो सर। तो आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं 10-12 लाइन का कोड देता हूँ, आपने उसको याद कर लेना है, ठीक है ना? चलेगा? चलेगा। पाई हट कर लेने का है। क्या हो गया आज सुबह सुबह सब सीरियस है क्या? टॉपिक है कौन सा? ध्यान से सुन रहे सर सब। अब आज की इसमें दो इंटरव्यू क्वेश्चंस है। फर्स्ट है डिफॉल्ट डेटाबेस कौन सा रहता है, जांगो कौन सा प्रोवाइड करता है? तो डिफॉल्ट SQLite 3 करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर द AWS डेटा और समथिंग RDS। सो तो फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डेटाबेस वी नीड engine name, database name, user, password,
होस्ट दैट इज नथिंग बट दी दैट्स URL। यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया ना, अगर आपको AWS का कनेक्ट करना है ना, वो URL लेता है। अगर आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको AWS का भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि मुझे प्रीवियस बैच को भी दिखाना था, लेकिन वो MySQL सर्वर का दिखाना था, लेकिन नहीं हुआ, किसी ने तो भी स्टूडेंट नहीं कर दिया था, तो मैंने नहीं लिया। तो मैं इस बैच को मैं आपको AWS का डेटाबेस कैसे, RDS कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी दिखाऊंगा। तो हमें इतनी अभी के लिए है ये दो बात, हमें ये जो दो बातें ये हमारे ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है? क्योंकि हमारा डेटाबेस सेम सिस्टम पे जहां पे हमारा Django एप्लीकेशन पे, Django एप्लीकेशन है, लोकल होस्ट पे दोनों भी, तो हमें होस्ट देने की जरूरत नहीं है ना पोर्ट नंबर देने की जरूरत है। अगर हमारा डेटाबेस रिमोट सर्वर पे रहता था तब हमें होस्ट एंड पोर्ट नंबर देने की जरूरत थी। क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहा हूँ, जहां पे Django एप्लीकेशन रहेगा ना, वहीं आपका डेटाबेस रहेगा, डोंट वरी। तो आपको ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या बोलते हो, ऑप्शनल ही रहेगा दोनों। ठीक है, सर चलिए। सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है? हाउ टू हाउ टू कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर यस, AWS? कौन से कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर रहता है, तो इतने पैरामीटर आपको बोलना है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया, वो तो पूछने वाला सवाल है, वो तो बहुत बार पूछा गया है डेटाबेस पे, ये दो क्वेश्चंस। और एक है द थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू check the connection, what are the commands used for the checking the connection, कनेक्शन के लिए भी कुछ है कमांड है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन मेक, माइग्रेशन एंड माइग्रेट, उसमें भी आज जितना भी सेशन है ना, आज इंपॉर्टेंट सेशन है। आज 101% आप जब इंटरव्यू फेस करोगे ये क्वेश्चन आने वाले ही है, डोंट वरी। ठीक है, स्टार्ट कर दें, स्क्रैच से करूं या इसी को कंटिन्यू करूं? क्रैश क्रैश कीजिए सर, क्रैश। एज एक्सपेक्टेड, ओके ठीक है, ठीक है। Django, ओके, सो एक सेकंड मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट कर लेता हूँ। Django हाइपन एडमिन, हाँ, Start project. प्रोजेक्ट नहीं हो, अभी कौन सा लो बोलो? संडे। स्टॉक संडे स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक इज अ प्रोजेक्ट, ओके, ओके, स्टॉक मार्केट, ठीक है। उसके बाद में यस Python पाइथन main.py. हाँ, Start app. हम करेंगे एक स्टॉक मार्केट में, सपोज यहाँ पे करेंगे हम MRF, ऐसे एक जस्ट इसके लिए बोल रहा हूँ, ऐसे MRF का, ओह सॉरी, RF, ओके। बाद में हम दूसरा एक करेंगे, यहाँ पे करेंगे, कौन सा करेंगे? टाटा। टाटा, ओके, टाटा, ओके। उसके बाद में सपोज और एक ऐप करेंगे क्रिएट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, फाइन, गया कहीं पे, को रजिस्टर करेंगे. ओके, स्टॉक मार्केट, ठीक है, आ गया। यहाँ पे हमने, ये हमारा प्रोजेक्ट का मेन डायरेक्टरी है, ये हमारा दो, हमारे कितने, तीन तीन हमारे ऐप है, ठीक है। चलो सेटिंग में उसको रजिस्टर करते हैं पहले, बोलो यहाँ पे कंप्लीट, हाँ, यहाँ पे टाटा, Okay. हाँ, ओके, हाँ, बाद HU. में हिंदुस्तान, ओके फाइन, रजिस्टर कर लिए। हम अब टेम्पलेट भी क्रिएट करते हैं, कहाँ पे क्रिएट करना है टेम्पलेट? न्यू, यहाँ पे डायरेक्टरी कौन सा, टेम्पलेट्स, ओके। इसके अंदर हम ये करते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं टाटा की, उसके टाटा रिलेटेड जितने भी फाइल्स यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे हमारा HU, उसके बाद में हमारा कौन सा है, MRF. MRF, ओके। ये मैंने कर दिया, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। इसको एक एक वेब पेज बनाता हूँ, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, अगर चाहिए तो मैं कर दूँ। वेलकम वाला यहाँ से, यहाँ पे वेलकम टू टाटा पेज, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको ये करना है तो
H1, okay, this page regarding this page is regarding Tata stocks. एक बात बोलता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस में या लर्निंग में अगर थोड़ा भी ये कर दो ना, मतलब गैप देते हो, अभी जैसे ही मेरा 8 दिन का ही हो गया तो वो ये हो जाता है एकदम, बोलते हैं ना डिसकंटिन्यू हो जाता है, टाइपिंग में हो गया या कहीं, तो उसके लिए कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे कौन सा को यहाँ पे वेलकम कर दूँ, ओके। और आप ये रिकॉर्डिंग मोड पे छोड़ के मत जाओ, अभी जो कौन सचिन कौन था ना, ये शुभम शुभम आई थिंक, फिर बोलते हो कि सर ऑफर नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, प्रैक्टिस नहीं करते। ओके एचयू, उसके बाद में कौन सा है हमारे, इसमें भी वेलकम लग देता हूँ, वेलकम। वेलकम टू एमआर। अभी ये मैंने 3 पेज बना दिए, ठीक है, ओके। अभी क्या करना है, सेटिंग में टेम्पलेट टेम्पलेट रजिस्टर कर पाथ कैलकुलेशन ठीक है। स्टैटिक वगैरह आप करो क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे टेम्पलेट दिया टेम्पलेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर यार दिया पाथ पाथ डॉट डॉट जॉइन ज्वाइन, हाँ जॉइन पाथ बेस्ड पेस्ट किया है हाँ टेम्पलेट टेम्पलेट्स टेम्पलेट नाम देखो करेक्टली, नहीं तो अदरवाइज बहुत एरर, आप रेक्टिफाई करते करते पूरा दिन चल जाएगा आपका। टेम्पलेट्स, ओके टेम्पलेट्स ठीक है, हो गया, ओके। आप क्या करते हैं, यूआरएल बनाना है, यस यस, ओके व्यूज बनाते हैं, ठीक है, हाँ कहाँ पे, टाटा पे जाएंगे, इसका व्यूज बनाएंगे, हाँ यहाँ पे डेव क्या बनाओ बोलो, सपोज हमारा टाटा शेयर्स, ओके कोई भी ये करो, ऐसे रिक्वेस्ट आने के बाद में यहाँ पे डायरेक्टली हम रिटर्न, हाँ वेंडर रेंडर, जो कुछ रिक्वेस्ट आ रहा है वो कहाँ पे से कर, टाटा के कौन से पेज पर, वेलकम ओके ठीक है, ये हमने टाटा का व्यू बनाया दिया, उसके अंदर एमआरएफ का, उसको ही कॉपी करता हूँ मैं, फिर हम उसके बाद में ये करेंगे, एडवांस करते करते जाएंगे, पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, फुल कॉम्प्लिकेट करके नहीं रखना है। यहाँ पे एमआरएफ शेयर्स, ओके एमआरएफ, ओके क्या है कैपिटल, ओके ठीक है, यूआरएल बनाते हैं, बोलो ऐप लेवल बनाना पड़ेगा। आप लेवल करो, हाँ आप बोलोगे वैसा है कुछ नहीं, लेकिन अभी 3 ऐप है तो 3 यूआरएल फाइल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो उससे ठीक है, इससे ही कर देता हूँ, आप ही ऐप लेवल क्रिएट करो, कौन सा है
क्या होगा इशू बोलो? अगर मैं अभी ये करता हूँ तो क्या इशू आएगा बोलो? सारे ऐप लेवल के जो यूआरएल है वो मेन यूआरएल सिर्फ एक ही व्यूज एक्सेस होगा। समझ में आया क्या? अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम, बराबर है ना? देखो यहाँ पे अगर मैं फ्रॉम, कौन सा ऐप है? टाटा। टाटा। ओके, टाटा इंपोर्ट यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम HU इंपोर्ट, हाँ, व्यूज। ओके, फ्रॉम MRF, हाँ, इंपोर्ट व्यूज। अगर ऐसा करता हूँ तो ये ओनली लास्ट वाला व्यू ये होगा, ये दोनों का वो राइट कर देगा। तो इसके लिए क्या करना? ऐसे ये वाला एरर मैंने 1 घंटा ढूंढा था पर नहीं मिला था। हाँ, तो इसको क्या कर सकते हो? इसको आप अलाइसिंग यूज कर सकते हो। हाँ सर, अलाइसिंग एज कर सकते इसको V1 करो, करेक्ट। इसको एज V2 करो, इसको एज V3 करो। हो गया अभी। मैं दोनों करके दिखाता हूँ, ऐप लेवल भी करके दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट लेवल। ये मैंने प्रोजेक्ट लेवल किया। हाँ, ओके। क्या करना है यहाँ पे? सपोज कौन सा करूँ? टाटा। टाटा। ओके, यहाँ पे हाँ HU, हाँ, और यहाँ पे MRF। ओके, MRF। टाटा का कौन सा है? V1। हाँ, V1 डॉट क्या था हमारा? टाटा शेयर्स। टाटा शेयर। करेक्ट। यहाँ पे V2 ना HU का? ओके, हाँ, V2 डॉट यहाँ पे HU शेयर्स। शेयर से क्या? शेयर से मुझे देखना, शेयर है, हाँ, ओके ओके। और यहाँ पे V3 डॉट, हाँ, हमारे शेयर। ठीक है, हो गया हमारा। ओके, करते हैं अभी python manual.py run server। ओके, अभी इस लाइन को ध्यान से देखना है, इस लाइन को। अभी के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। ओके, ठीक है। अभी तो ये हो गया अभी, क्या बोलते इसको? ठीक है, इसको मैं अभी क्या करता हूँ? कौन सा है ये? टाटा। ओके, हो गया। इसको में कौन सा था? HU पेज। यहाँ पे कौन सा था? MRF। ओके, MRF स्टॉक। करेक्ट। आगे तीनों भी ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आते हैं डेटाबेस की तरफ। हमने अभी बनाया, अभी ये स्क्रैच से बनाने का ये भी था कि जो लोग टेम्पलेट का सेशन मिस कर दिया था या वो समझ में नहीं आया, तो उनको अभी समझ में आया होगा, आई होप। क्या किया था हमने? जस्ट टेम्पलेट का डेस्क्रिप्ट किया था और उसको जस्ट उसका पाथ कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, अब आते हैं डेटाबेस में। तो यहाँ पर बैकएंड हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, बैकएंड। तो यहाँ पर आपको डेटाबेस का इंजन नाम, तो फिलहाल के लिए आई एम यूजिंग MySQL। कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं? MySQL। तो दिस इज अ इंजन नेम, डेटाबेस इंजन नेम। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा और याद रखना है, मैं आपको MySQL डाउनलोड, ये उसका डाउनलोड लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड्स यहाँ पे होना मुझे कस्टमर इंटरप्राइज नहीं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको चैट पे दे रहा हूँ, डेटाबेस का लिंक। और याद रखो 5 एंड अबव का वर्जन ही सपोर्टेड है इस जांगो को। ओके, अगर आप बिलो वर्जन करते हो, अभी 8.0.27 है, तो ये इट्स सपोर्टेड। आई एम रिकमेंडिंग ये इंस्टॉल करो, दिस वन कंप्लीट आ जाएगा। ओके, ये मैंने ऑलरेडी करके रखा है। यस,
SQL वो 24 स्टार्ट होने वाला है ना आई थिंक। होगा यस, मंडे से ट्यूसडे से हो जाएगा। ओके ओके सो हियर तो इस सर एसएसएमएस से नहीं होता क्या? एसएसएमएस का भी होता है, SQL सर्वर बोल रहे हो ना? हाँ सर। यस होता है। उसका भी कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ मैं। हर एक का ओरेकल का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, पोस्टर का मिल जाएगा, मोंगोडीबी का मिल जाएगा, जो भी डेटाबेस है उसका सबका कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डेटाबेस को इंस्टॉल किया है, MySQL क्लाइंट। अगर इंस्टॉल करोगे ऐसा आ जाएगा, इसको ओपन किया हूँ। तो ये आपको इंस्टॉल करते समय आपको यूजर नेम और पासवर्ड ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी रूट रखा है, रूट में कनेक्ट हो गया। वेलकम टू MySQL मोड। एक कमांड लाइन इंटरफेस है। अगर आपको यूजर क्या बोलते हैं उसको, GUI बेस्ड चाहिए तो वो भी है हमारे पास। MySQL नाम था उसका, मैं भूल गया हूँ। MySQL workbench. वर्कबेंच, ये वर्कबेंच। हम रियल टाइम में वर्कबेंच वगैरह, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस ये हो जाता है। ये देखो ये रूट, ये मेरा वर्कबेंच GUI के थ्रू पूरा। यहाँ से कमांड चलाओ या यहाँ से कमांड चलाओ, मुझे यहाँ पे ये मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं कमांड चलाऊंगा शो डेटाबेसेस, ओके, तो मेरा डेटाबेस है, इतने डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, ओके। ये लॉजिकल डेटाबेस है, लॉजिकल, ठीक है। तो अब मैं अभी एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, कौन सा? सो इसके लिए है कमांड है क्रिएट अ डेटाबेस, ओके। मैं नाम देता हूँ Python 2425। देखो ओके, दैट मींस डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखो Python 2425 था क्या? नहीं है। अगर मैं आपको बताऊंगा शो डेटाबेस आप करूंगा तो आप देखो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया Python 2425 का। इशू डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है? हमारे पास क्या क्या है अभी? ये क्या है? MySQL क्या है? इंजन नेम, करेक्ट। अभी डेटाबेस का नाम कौन सा हो गया हमारा? Python 2425। इसके अंदर क्या क्रिएट करने वाले? हमारे टेबल्स। तो यहाँ पर हमारा जो इंजन था, इंजन का नाम क्या है? इंजन का नाम MySQL, करेक्ट। डेटाबेस का नाम क्या है अभी? डेटाबेस का नाम बोलो। Python 24. Python 2425, ठीक है। जो यूजर है, यूजर क्या है? यूजर हमारा रूट। आपको ये इंस्टॉल करते समय ही होगा रूट, ओके। और इसका पासवर्ड है, पासवर्ड भी क्या है हमारा? रूट। होस्ट एंड पोर्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सेम सिस्टम पे दोनों भी चल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने पहले से, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो मैं क्या बोलूँ। मैंने आपको जब Django स्टार्ट हुआ था तभी बोला था कि मैंने कि 95% वर्क Django ने किया है, आपको सिर्फ 5% वर्क करना है। तो दैट मीन्स 95% में ये आ गया यूजर मैनेजमेंट, ओके। उसके बाद पॉलिसी मैनेजमेंट, जो कुछ यूजर की पॉलिसी वो हो गया। उसके साथ में कुछ टेम्पलेट्स है, जो कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशंस है, उसका सब डेटाबेस ऑलरेडी Django ने क्रिएट करके रखा है। डेटाबेस बोल रहा हूँ, बोलते उस टेबल्स बोल रहे हो ऑलरेडी करके रखे। लेकिन जब तक आप उसको माइग्रेट नहीं करते, दैट मींस देखो यहाँ पे 18 अप्लाइड माइग्रेशंस, यू हैव 18 अनअप्लाइड, दैट मींस ऑलरेडी है लेकिन आपने उसको माइग्रेट नहीं किया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बाय डिफॉल्ट Django के पास कुछ ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड, लेकिन वो अपने डेटाबेस में अभी तक क्रिएट नहीं किए। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो कमांड है, लेकिन ठीक है अभी उसको थोड़ा सा पार्क करते, इसमें देखते। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसको मुझे चेक करना है कि मेरा जो डेटाबेस है इसके साथ में कनेक्शन हुआ या नहीं। मेरा जो डेटाबेस है उसके साथ में मेरा कनेक्शन हुआ या नहीं, तो उसके लिए कमांड है, लिख लो, ये इंटरव्यू में पूछते। उसके लिए python मैंने .py शेल ओपन करना है, शेल
ये आएगा, उसमें क्या कमांड चलाना है, फ्रॉम django डॉट db import connection, अभी ऑब्जेक्ट बनाओ, सपोज obj इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर। ओके, अगर ये कमांड ठीक से चल गई तो इसका मतलब आपका डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन ठीक से हो गया। ओके, सो these two commands are used to check, इंटरव्यू में पूछा है, बहुत बार पूछा गया है, कौन सी दो कमांड, कौन सा सेल कमांड आप यूज करते हो कनेक्शन चेक करने। अगर ये फेल होता है, अगर कोई आपने, अगर सपोज मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर नेम है ना, पासवर्ड है 123 करता हूँ, 123 इसको सेव करता हूँ और वापस से इसको मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट, और वापस से कमांड चलाता हूँ, देखो ओके, यहाँ पे भी देखो फ्रॉम कनेक्शन, ओके कनेक्शन, ओके Yes. एक्सेस डिनाइड, दैट मीन्स क्या हो गया है, हमने हमारा जो एक्सेस था कनेक्शन मतलब पासवर्ड का, वो उसने डिनाई कर दिया, पासवर्ड रॉन्ग हो गया, दिख रहा है ना। कोई Yes, इशू, sir. हाउ टू चेक द कनेक्शन लिख लिया क्या, Yes, sir. रिकॉर्डिंग Yes. मोड Yes. वाले, Yes, sir. सर ये क्या क्या, तीन हाँ? कमांड देने के बाद क्या किया आपने सर? कौन सा 3 कमांड दिया मैंने, एक ही कमांड दिया, 2 ही कमांड दिया, हाँ वो पहले पाइथन मैंने शेल, हाँ ये शेल ओपन किया, शेल ओके, बराबर है, ये शेल ओपन किया, उसके बाद में हमने ये जैंगो, ये कमांड बोलते एक डेटाबेस, एक कनेक्शन बोल के एक हमारा क्लास है, उसको मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम django db कनेक्शन, ओके, और उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जस्ट ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इसका मतलब हमारा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन ओके, ओके अगर नहीं होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट तो समझ लेने का हमारा कहीं तो भी गड़बड़ हो गया है। ओके, तो ये 2 कमांड किसके लिए, चेक द कनेक्शन। कनेक्शन। कोई इशू गाइस, No, 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 sir. sir. No, sir. ओके सो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्रिएट करते हैं, मॉडल में जाकर एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, अभी आता है मॉडल, हमने डेटाबेस क्रिएट कॉन्फ़िगर कर दिया, सब यूआरएल वगैरह सब बना दिया, अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, कोई इशू नहीं। अब जाते हैं मॉडल में, अब सपोज मुझे टाटा के इसमें, ये देखो टाटा मॉडल, टाटा के मॉडल, उसका मुझे टाटा का शेयर्स का कुछ ये करना है, टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे मॉडल्स है, देखो मॉडल डॉट पी में आ गए, हमें क्लास बनाना है, क्लास, ओके क्लास कौन सा बनाओ बोलो, कौन सा टेबल क्रिएट करना है आपको, सपोज मुझे करना है टाटा, टाटा मोटर्स, और टाटा ये बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर सपोज मैंने टाटा मोटर्स किया, ओके उसका टेबल मुझे क्रिएट करना है, ओके टाटा मोटर्स, कोई भी मैं कैपिटल देना है तो कैपिटल भी दे सकते हो, और टाटा यहाँ पे मैं मोटर्स, ओके तो आपको ठीक है। अब इस क्लास को सिंपल याद रखने के लिए आपने मॉडल्स किए हैं बराबर, तो ये मॉडल्स डॉट मॉडल, मॉडल्स डॉट मॉडल, मॉडल डॉट मॉडल बोलते क्या किया, इन शॉर्ट वी हैव इनहेरिटेड पाइथन 24 को 25 को क्लास ऑब्जेक्ट नहीं हुआ आई थिंक ना, नहीं हुआ सर। No, sir, नहीं हुआ। फॉर जस्ट, यस फॉर जस्ट वी जस्ट ये कह लो कि इसको हमने इनहेरिट किया, बोलते एक ऑलरेडी एक क्लास लिखा था उसको पेरेंट क्लास का, उसको हमने जस्ट इनहेरिट किया है, मॉडल्स डॉट मॉडल, ये हमारा क्लास, ठीक है ओके। जो जो फील्ड आपको क्रिएट करना है, सपोज मुझे फील्ड करना है, सपोज यहाँ पे आईडी नहीं स्टॉक नंबर या स्टॉक जो कुछ है, स्टॉक नंबर इज इक्वल टू, नंबर कौन से इसमें आएगा, जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो, देखो अभी शॉर्ट में कि जब भी आप कहीं पे टेबल डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हो तो हमारे पास
ये सिक्वल का क्यूरी रहता था, कौन सा, क्रिएट टेबल नेम। अभी सपोज एम्प्लॉय का क्रिएट करना है टेबल नेम, करेक्ट, तो उसके अंदर के उसके फील्ड अब नेम है, उसका डेटा टाइप क्या करते थे हम, varchar और varchar 2 समथिंग, यहाँ पे मैं 20 का देता हूँ। ओके, उसके बाद में सपोज सैलरी क्या देते हो, सपोज इंटीजर, ओके, उसका जो साइज अगर देना है सपोज 10 डिजिट, ओके, तो ये आप ऐसा देते हो। तो सेम वैसा ही लिखना है, लेकिन ये पाइथन में लिख रहे हो आप, पाइथन में क्लास बनाया, हाँ, स्टॉक नंबर किस में आएगा, तो वो किस में आएगा, तो नंबर में आएगा, बराबर है। तो इंटीजर मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, कोई इशू नहीं, इंटीजर फील्ड। अगर सपोज स्टॉक नेम, यहाँ पे स्टॉक नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट सपोज नेम किस में आएगा, कैरेक्टर फील्ड में, बराबर है, ऐसा नो, कैर फील्ड कितना लेंथ का देना है आपको, सपोज 30 लेंथ का, या उसको मैक्स लेंथ बोलते हैं, उसको डायरेक्टली मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 30 देना ही पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगा। ओके, उसके बाद में स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट किसमें आएगा प्राइस, फ्लोट फील्ड में ना, बराबर, फ्लोट फील्ड में, इंटीजर फील्ड हो फ्लोट फील्ड कौन सा भी दो, कोई इशू, 3 ही इसका करता हूँ, 3 ही इसका। सर ये फ्लोट फील्ड और इंटीजर फील्ड में क्या डिफरेंस है? ये फ्लोट फील्ड सब पूछोगे तो कैसे चलेगा यार। अब इंटीजर हमने इसमें देखा है, पाइथन में देखा है, इंटीजर और फ्लोट दोनों में क्या डिफरेंस है, कि इंटीजर नथिंग बट द कंप्लीट नंबर विदाउट फ्रैक्शन। ओके, आए समझ में। इंटीजर मींस कंप्लीट नंबर विदाउट फ्रैक्शन, और फ्लोट मीन फ्रैक्शन, करेक्ट, तो इसके लिए ठीक है। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये हमने 3 फील्ड, आपको जितने करना है कर सकते हो। ओके, ठीक है, अब ये हो गया हमने कर लिया। इसके बाद में आप देखो, ध्यान से देखो भैया, कि आपने तो ये पाइथन का कोड लिखा है, लेकिन सिक्वल को इसको है ना, मैं अभी के लिए जस्ट ये कमांड लिख लिया आपने दोनों? यस सर, लिख ले। हाँ, ये Yes, sir. इंटरव्यू में Not वहां पे आईएमपी करो, इंटरव्यू में पूछने वाले ही आपको, डोंट वरी। ओके, अब इसका भी हम है ना, इसको हम बाद में करते हैं, ठीक, इसको हम बाद में करते हैं। अब ध्यान से देखना है, ये हमारा माई सिक्वल है, उसके अंदर हमने क्या किया है, एक डेटाबेस क्रिएट कॉन्फ़िगर किया है, कौन सा किया है हमने, पाइथन 24 एंड 25, ठीक है। ओके, ये हमारा जैंगो है, उसके अंदर हमने क्या किया है, model.py में एक क्लास बनाया है, model.py में एक क्लास बनाया है, जो जिसका नाम है हमारा टाटा मोटर्स, ठीक है। ये उसमें हमने 2-3 फील्ड लिखे, ठीक है। आपने जो कोड लिखा है वो पाइथन फाइल में, देखो पाइथन कोड है, ये जो कोड है पाइथन कोड है, लेकिन माई सिक्वल डेटाबेस को ओनली सिक्वल समझ में आता है, ओनली सिक्वल। अगर डेटाबेस क्रिएट करना है सिक्वल का यूज करो। अब ये तो पाइथन है, और ये तो सिक्वल है, फिर ये पाइथन कोड को हमें कन्वर्ट करना है, वी नीड टू कन्वर्ट पाइथन कोड इनटू सिक्वल कोड, क्योंकि सिक्वल या डेटाबेस को पाइथन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। प्रॉब्लम से समझ में आया क्या? Yes. Database only understand the SQL language, and this is the Python. We are writing the Python code. So to convert this code, we have two commands. The first one, देखो आप ध्यान से यहाँ ये लिख लो, ये इंटरव्यू में है, make migrations, manage.py make migration. So this command is used to convert. क्या कन्वर्ट करेगा वो? क्या कन्वर्ट करेगा? पाइथन कोड टू सिक्वल, मेक माइग्रेशंस, ठीक है। आपके पास सिक्वल कोड है, लेकिन मुझे बोलो अभी तक हमारा टेबल क्रिएट हुआ क्या? हमने जस्ट क्या किया, मेक माइग्रेशन करके कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो सिक्वल कोड हमारा ये हुआ है, क्रिएट हुआ है, उसको हमने अप्लाई किया क्या डेटाबेस पे?
नहीं क्या, जस्ट make migration is used to convert the code. Now we want to apply, that means we want to fire this SQL command to database, तब जाकर वो टेबल क्रिएट होगा। तो उसके लिए है कौन सा कमांड है, migrate. So this migrate command is used to apply SQL on database. ध्यान से देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। दो कमांड है, इंटरव्यू में पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट। So make migration used to convert or to create SQL code from Python code. Correct? And the migrate command used to apply SQL code on the database. तो मुझे बोलो टेबल कौन से कमांड से क्रिएट होगा, माइग्रेट से। कौन से कमांड से, टेबल जो डेटाबेस में Python. टेबल क्रिएट होगा तो कौन से कमांड से होगा डेटाबेस में, माइग्रेट, नॉट माइग्रेशंस। इंटरव्यू में कंफ्यूज करने वाले आपको। तो माइग्रेशन कमांड इज यूज्ड टू कन्वर्ट ओनली। अब अगर देखोगे यहाँ पे अभी देखो मैं इसको एग्जिट करता हूँ, ओके, यहाँ पे CL, ओके सॉरी CLS, ओके। यहाँ पर अगर मैं जब भी इसको रन करूंगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना रन सर्वर, देखो अब इस कमांड का आपको यूज है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। दैट मीन्स देखो कौन कौन से माइग्रेशंस है, एडमिन रिलेटेड, अर्थ रिलेटेड, कंटेंट टाइप रिलेटेड, सेशन रिलेटेड। तो इसके लिए क्या बोल रहे हो, क्या करो, माइग्रेट करो। ऑलरेडी माइग्रेशन करके रखा है, ऑलरेडी उनके पास SQL कोड है, आपको जस्ट ये कमांड चलाना है, जितने टेबल्स इसके किसके जैंगो के, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। कहाँ पे, बैकएंड में। लेकिन हमने तो हमारा भी टेबल क्रिएट किया है ये, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, बोलो कौन सा कमांड चलाना पड़ेगा, पाइथन मेक माइग्रेशंस। तो देखो अभी क्या बोले, देखो क्या बोल रहा है, दिख रहा है, Yes. क्रिएट मॉडल टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, कहाँ गया हमारा स्टॉक्स पे, कहाँ पे गया हमारा, ओके। अब देखो कहीं पे कुछ क्रिएट हुआ कि देखो यहाँ पे, कहाँ पे गया, एक सेकंड दो, टाटा के अंदर माइग्रेशंस, उसके अंदर देखो कुछ क्रिएट हुआ, देखो 001 डॉट, देखो करेक्ट ना। Yes. अगर उसके अंदर जाओगे ना तो ये देखो ये कोड है ना, ये आपको सिमिलर लगेगा। किसका सिमिलर, SQL के सिमिलर। देखो आईडी मॉडल दिख रहा है ना, Yes, sir. SQL। लेकिन अभी तक हमारा टेबल क्रिएट हुआ क्या, देखो अभी यहाँ पर अगर जाएंगे, कौन सा है, शो डेटाबेस, ओके। अब मुझे इस डेटाबेस में जाना है, तो उसके लिए यूज कौन सा डेटाबेस हमारा, पाइथन 2425। ये अभी मैं डेटाबेस में आ गया हूँ। अगर यहाँ पर मैं CLS, अरे यार चलो इसमें नहीं चलेगा, ठीक है कोई इशू नहीं। हाँ, इसमें अगर मैं देखता हूँ कि इसमें कोई टेबल है क्या, टेबल्स है क्या, कोई टेबल्स डेटाबेस में, No. नहीं। हमने तो कमांड चलाया, लेकिन ये कमांड किसके लिए है, जस्ट टू क्रिएट, क्या क्रिएट किया उसने, Migration. कौन सा, कन्वर्ट Python code to SQL. कन्वर्ट है ना, Python to SQL. कोई इशू यहाँ तक, Yes, sir. इशू है तो पूछो, नहीं। नाउ वी कैन हम उसको देख भी सकते हैं, SQL का कोड अगर देखना है ना आपको कि एग्जैक्टली कैसा ये हुआ है, तो उसके लिए कमांड है, आई थिंक पाइथन .py SQL माइग्रेट, और कौन सा फाइल का नाम, ऐप का नाम क्या है हमारा, टाटा 001 अंडरस्कोर इनिशियल। देखो हमने उसके अंदर, ये देखो ये टेबल एक दिख रहा है क्या, सेम लाइक SQL क्यूरी, क्रिएट टेबल नेम, वो आईडी वगैरह, ये देखो स्टॉक नंबर दिख रहा है।
ये सर नॉट नल वगैरह उसका Yes, sir. इनबिल्ट है क्या इसके अंदर? इनबिल्ट है। और एक बात है, देखो आपने मैंने अभी तक वो डिस्कस नहीं किया, आपको दिख रहा होगा कि हमने तो टेबल देखो कितने फील्ड किए थे, स्टॉक नंबर, स्टॉक नेम, स्टॉक प्राइस, लेकिन इसमें एक और एक ऐड कर दिया उसने। क्या ऐड कर दिया? आईडी। आईडी। तो ये बाय डिफॉल्ट आईडी क्रिएट करता है। आईडी मींस यूनिक के लिए, प्राइमरी की बाय और उसको डिफॉल्ट प्राइमरी की भी असाइन कर दी। वो ऑटोमेटिकली पड़ता है। अगर आप बोलते हो नहीं सर मुझे वो उसका नहीं चाहिए, मुझे मेरा खुद का चाहिए, तो आपको जिसको जब जब भी आपको खुद का चाहिए ना, यहाँ पर प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू करना है। मैं दूसरे ऐप में करके दिखाता हूँ, फिर वो आईडी नहीं क्रिएट करेगा, फिर आपका जो यूजर डिफाइन जो कॉलम है उसको ही वो आईडी एज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये कमांड लिख लो। ये भी दूसरी क्या है यहाँ पे, ये ऐप नेम और ये हमारा फाइल का नाम। तो दिस कमांड इज यूज्ड टू सी द SQL कमांड, SQL क्वेरी क्रिएटेड बाय द Django. ठीक है, okay, now it's time to apply the whatever the SQL generated on the database. So here Python, just we need to write migrate, enter। देखो इसमें भी हमारे ये टेबल थे, देखो ये हमारा टेबल था, अप्लाइंग डाटा ये हमारा टेबल है। बाकी के देखो कंटेंट टाइप्स, ऑथ एडमिन, ये किसके टेबल है? ये पूरे जांगो के इनबिल्ट टेबल है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब अगर मैं यही सेम कमेंट चला तो शो टेबल, नाउ वी हैव टेबल्स, दिख रहा है यहाँ पे हमारा टेबल दिख रहा है क्या आपको? कहीं पे है क्या? तो सबसे लास्ट में है ना टाटा। टाटा इज नथिंग बट दी एप्लीकेशन नेम, देन योर टेबल नेम। यहाँ पे भी देखो कितना जबरदस्त मैनेजमेंट किया है, पहले एप्लीकेशन का नाम, फिर उसके अंदर के टेबल का नाम। इससे क्या हो गया? कोड को मैनेज करना इजी हो गया। करेक्ट? Yes. Yes. Yes, sir. कोई इशू अभी यहाँ तो तक? अगर सेम भी नाम रहा तो कितना भी सेम रहने दो, वो एप्लीकेशन के नाम की वजह से वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। एप्लीकेशन नाम पे जाना जाएगा। यस। तो इंटरव्यू में से अगर आपने काम किया है ना, तो छोटी छोटी बातें आपको इजीली पता चलेगी। बोलते इंटरव्यू में इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आपने सही में काम किया है या नहीं, तो वो सब पूछेगा आपको कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे चेक करते हैं कनेक्शन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में अगर होस्ट यहाँ पे है वो पूछेंगे रिमोट लोकेशन पे रहा तो क्या क्या करोगे। ठीक है, फिर आपको टेबल क्रिएट करना है तो फिर क्या करोगे। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के बाद में अगर मुझे मैंने माइग्रेशन चला है तो टेबल क्रिएट हो जाएगा, कभी माइग्रेशन चला है तो। ये प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज होते ही है। तो ये कंफ्यूज नहीं होने के कारण, नहीं होना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन में ओनली कन्वर्ट द पाइथन कोड टू SQL कोड, माइग्रेट, अप्लाई द चेंजेस, अप्लाई द SQL कोड ऑन द डेटाबेस, खत्म, दैट्स इट। कोई इशू? No. No, sir. सिंपल था। हाँ सर। Yes. आप क्या करते हैं? यस, अब इसमें ना डेटा डालते हैं हम। अब इसमें डेटा इंसर्ट करते, लेकिन डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें डेटा यूजर से लेना है, करेक्ट ना? तो यूजर से लेने के लिए हमें एक HTML पेज बनाना पड़ेगा। HTML पेज में हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म में फिर नेम, उसका ईमेल आईडी, उसका सैलरी वगैरह वगैरह करके यहाँ पे सबमिट बटन पे सबमिट करेंगे तो ये पूरा के पूरे फील्ड हमारे टेबल में आना चाहिए। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट में हमारे डिफरेंट चैप्टर है, इसका नाम है फॉर्म्स। हम आगे का चैप्टर है हमारा फॉर्म्स। उससे पहले लेकिन हम देखने के लिए कि जस्ट हम अगर यूजर इनपुट डालते तो वो आता है या नहीं, और इसका मुझे देखना है कि हमें डेटा दिखता है या नहीं जांगो में, तो उसके लिए हम एडमिन पैनल का यूज कर सकते हैं। अभी के लिए फॉर नाउ वी कैन यूज एडमिन पैनल। सो Django already provide admin panel to handle the all administrative related activity। अगर आप देखोगे ऑलरेडी एप्लीकेशन है हमारे Django का। अगर यहाँ पे हम ये करेंगे ना, तो यहाँ पे एडमिन, सॉरी Django मैंने सर्वर स्टॉप किया ना यहाँ पे। ये देखो Django एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर जाकर हम उसको डेटा जो कुछ हमने टेबल क्रिएट किया वो भी देख सकते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ से लाने का है? तो
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड कौन सा है, क्रिएट सुपर यूजर। ध्यान से देखो अभी, पाइथन manual.py क्रिएट सुपर यूजर, सुपर यूजर। ओके, कौन सा सुपर यूजर करूँ, सपोज मैं एडमिन करता हूँ, एडमिन ईमेल एड्रेस admin@python.com, python.com, पासवर्ड admin@123, ओके, admin@123, ओके, यस, हो गया मेरा सुपर यूजर क्रिएट। अगर आप, अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ ना, देखो रन सर्वर, अब यहाँ से मैं आई कैन लॉगिन हियर admin@123, ओके, ये मेरा एडमिन पैनल। ये पूरा जांगो ने क्रिएट किया, हमने कुछ नहीं किया, ये जांगो का एप्लीकेशन है। यहाँ पे ग्रुप्स है, यहाँ पे यूजर है, तो क्या हमने यूजर क्रिएट किया था admin.python.com। ये यूजर को ऐड करना, यूजर को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा टेबल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हमने टेबल तो क्रिएट किया था, लेकिन उसका टेबल क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने जो टेबल क्रिएट किया है उसको हमने एडमिन पैनल में रजिस्टर नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या, Yes. हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एडमिन पैनल में उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए एडमिन कहाँ पे है, ये मेरा एडमिन है, ठीक है। यहाँ पर जाके हमें उसको रजिस्टर करना है। तो आप उसको रजिस्टर करने के लिए वापस से यहाँ पे एक क्लास बनाओ। क्लास कौन सा ये है, ये सपोज टाटा एडमिन, कोई भी नाम दे सकते हो इसको भी, टाटा एडमिन, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे देखो मॉडल्स था, मॉडल किया, यहाँ पे एडमिन है, बराबर है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एडमिन डॉट एडमिन, मॉडल एडमिन करो, यहाँ पे मॉडल एडमिन। अब यहाँ पर जितने फील्ड है 1 2 3, आपको कितने देखना है उधर एडमिन पैनल में, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे जस्ट एक लिस्ट डिस्प्ले नाम का एक ये है, लिस्ट बनाना है आपको। क्या क्या देखना है वहाँ पे आपको, सपोज वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, स्टॉक नंबर भी दिखना है, देखना है वहाँ पे, ठीक है, स्टॉक नंबर देख लो, ठीक है। वहाँ पे मुझे सपोज स्टॉक नेम भी चाहिए, ठीक है, स्टॉक नेम भी देख लो। तो जो फील्ड आपको वहाँ पे चाहिए उसका नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, ओके। आपको स्टॉक प्राइस भी चाहिए, ठीक है, स्टॉक प्राइस भी डालता हूँ, स्टॉक लिस्ट डिस्प्ले, ये बना लिया हमने, ठीक है। अब इसको हमें रजिस्टर करना है, जो कुछ हमारा मॉडल का जो टेबल है, जब ये जो टेबल है टाटा मोटर्स वाला, ये मुझे हमें एडमिन में लाना है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल टेबल को जो टाटा मोटर्स इसको एडमिन में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट टाटा मोटर्स, क्लास को मैंने इंपोर्ट किया ना यहाँ से, इसको मुझे यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। अब उसको मुझे ये करो, रजिस्टर कर दो। क्या रजिस्टर करो, कौन सा कमांड है इसको ले, admin.site.register, ठीक है। कौन सा टेबल करना है आपको, ये टाटा मोटर्स वाला, ठीक है, टाटा मोटर्स वाला, ओके। कहाँ पे रजिस्टर करना है, टाटा एडमिन में, टाटा जो हमारा टेबल है, ओके। अगर आप एडमिन पैनल देखोगे, अब इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो आ गया टाटा मोटर्स। अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी देखो कुछ भी उसमें डेटा नहीं है टेबल में। अगर अभी यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, यहाँ पे स्टॉक नंबर यहाँ पे करता हूँ 101, ओके। स्टॉक नेम सपोज मैं यहाँ पे टाटा कुछ भी ALIG सब ए, ओके। स्टॉक प्राइस सपोज 2000, ओके, सेव। अगेन ऐड करता हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 2 नंबर का, यहाँ पे टाटा बी, ओके। यहाँ पे स्टॉक प्राइस समथिंग, सेव। अभी ये जो डेटा सेव हो रहा है, ये डेटाबेस में हो रहा है या नहीं, Yes. देखेंगे चेक करके, Yes, sir. यहाँ पे देखेंगे कौन सा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल नेम है हमारा, Tata. टाटा मोटर्स, ओके। यू कैन सी दैट मींस हम जेंगो एडमिन में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, वो बैकएंड में भी हो रहा है, करेक्ट। वहां से अगर ये करोगे डिलीट तो यहाँ पे भी डिलीट होगा। यहाँ पे अगर डिलीट करोगे तो यहाँ पे डिलीट का है क्या ऑप्शन, यस, डिलीट टाटा मोटर्स, ये करोगे डिलीट, गो, ओके।
देखो यहाँ पे अभी तो ओनली वन रहेगा। डिफिकल्ट हो रहा है क्या लग रहा है? नो सर। थोड़ा 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 Yes, पहली sir. बार थोड़ा थोड़ा लगेगा, दूसरी बार और थोड़ा कम होगा, तीसरी बार और थोड़ा कम। समझ में? प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिस। सर एक क्वेश्चन होता आहे, हाँ। आपण जो आता डेटाबेस क्रिएट केलाय तो आपला कॅप्स मध्ये होतो ना टेबलचं नाव, पण इथं तसं दिसत नाहीये, मग हे केस सेन्सिटिव्ह नाहीये का SQL कमांड प्रॉम्प्ट? SQL केस सेन्सिटिव्ह नाही. नहीं सिक्वल नसतं, सिक्वल ओके मध्ये एव्हरीथिंग विल बी इन लोअर केस। ओके ओके. अभी कौन आ गया? पूरा महाभारत हो गया, अभी कौन आया? समझ में? ये किसके लिए? एडमिन पैनल में। और इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत। मीन्स मैं जिस प्रोजेक्ट में ना अभी फिलहाल में रेगुलर बेसिस पे एडमिन पैनल पे काम चलता है। हमने एक एपीआई क्रिएट किया है, उसमें हम जो फाइल है ऑटोमेशन क्रिएट किया है, जो हमारा एनालिसिस का जो फाइल है तो ऑटो अपलोड हो जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं। कुछ चेंजेस हुए तो ऑटो अपलोड, वो ऑटो चेंजेस हो जाता है हमारे हमारे डायरेक्टरी में। हमने उसको सिंक करके रखा है, ऑटो सिंक करेक्ट। वो 5:10 में सिंक होता है, पूरा जांगो है। आप बोलोगे सर मैं तो मशीन लर्निंग में डोमेन में काम करता हूँ, तो मुझे जांगो की क्या जरूरत है? इंपॉर्टेंस है, जांगो लगने वाला है। कोई इशू यहाँ तक अभी? नो सर। ज्यादा नहीं हुआ ना? नहीं सर, ठीक है। यहाँ पर ये देखो लिस्ट डिस्प्ले मींस यहाँ पे कौन सा, अभी अगर मैं ये निकाल दूंगा ना, अब ये 2 निकाल दूंगा तो देखो आपको एक ही कॉलम दिखने को मिलेगा वहां पे। अब देखोगे एडमिन में के एक ही कॉलम। अभी देखो यहाँ पे स्टॉक, ये देखो दिख रहा है स्टॉक नंबर, ओनली स्टॉक नंबर। अगर आप वहाँ पे और ऐड करते हो, यहाँ पे स्टॉक प्राइस ये निकाल देता हूँ मैं, ये निकाल देता हूँ। यू कैन सी हियर द स्टॉक प्राइस, दिख रहा है स्टॉक प्राइस। तो जितना वहां पे आप लिस्ट डिस्प्लेस के अंदर डालोगे उतना यहाँ पे दिखेगा। सर जितने हमने डिफाइन किया, अगर उससे ज्यादा हम इसमें इनपुट में डाले तो आएगा क्या? जैसे हमने 3 डिफाइन किए थे ना, स्टॉक नंबर, स्टॉक प्राइस और एक और किया था, और लेकिन हम इस वाले में ज्यादा डाले। नहीं वो डिस्प्ले नहीं होगा। हाँ लेकिन आपने यहाँ पे 2 ही किया है, अगर यहाँ पे 3 दिखेगा आपको। ये डिस्प्ले का बोल रहा हूँ, ये ओनली डिस्प्ले का दिखने का। यहाँ पे डिस्प्ले कितना करना है आपको उसका है, लेकिन आप जब इंसर्ट करोगे तो वो तीनों लेगा ना, तीनों जितने उतने आएगा। ओके 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 उतना। और ये रिसेंट एक्टिविटी भी बताता है यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी आपने किया। यहाँ पे ऐड करते हो, क्या कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं यहाँ पे। और आप यहाँ पे प्राइस भी कर सकते हो। ओके कैन सी वी हैव एडेड। यहाँ पे जाओगे तो वापस से वो दिखेगा आपको। ओके सर वो एक इम्पोर्ट किया ना मैंने, वो मॉडल्स डॉट फ्रॉम टाटा मोटर्स, वो एक बार वो रिपीट करो ना। पास ही इम्पोर्ट किया है वो। कौन सा? ये हाँ ये करंट डायरेक्टरी से। अरे दोनों फाइल एक ही इसमें ना, ये मॉडल्स और एडमिन बराबर है। तो ये करंट डायरेक्टरी में, तो उसके लिए मैंने डॉट लगाया। आपको डॉट नहीं लगाना है तो आप डायरेक्टली फ्रॉम टाटा इंपोर्ट मॉडल्स ऐसे भी कर सकते हो। ओके ये डॉट मींस करंट डायरेक्टरी में है ना दोनों फाइल। इसको दूसरा वे क्या रहेगा? फ्रॉम टाटा डॉट कौन सा रहेगा वो? मॉडल्स इंपोर्ट कौन सा है हमारा? टाटा मोटर्स। सॉरी क्या है? मोटर्स हो गया, कोई इशू नहीं। हो गया बोल तो।
आप उसके लिए मैं उस टाइम बोल रहा था आपको सब लोगों को कि मॉडल और पैकेज ये परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों भी सेम डायरेक्टरी में है, तो आप ऐसा करो उस फोल्डर का नाम बराबर है फ्रॉम टाटा डॉट मॉडल्स, वहां तक गए, उसके अंदर का हमने टाटा मोटर्स को इंपोर्ट किया। अदरवाइज डायरेक्टली फ्रॉम फ्रॉम डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी मॉडल में का इंपोर्ट करो टाटा मोटर्स। कोई इशू? सर ये पूछना था सर, ये क्लास टाटा एडमिन के अंदर जो लिखा है ना एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, सर एक बार ये बता दीजिए। ये हमने क्या किया है, ये इनहेरिट किया है, ऑलरेडी क्लास लिख के रखा है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट उसमें कौन से कॉलम डिस्प्ले करना है, बस उसका लिस्ट पास करना था। तो ये क्लास ऑलरेडी है, ये सिस्टम के क्लास है एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ऑलरेडी सिस्टम में जांगो में लिखा है, आपको उसको इनहेरिट कर कर उसमें नया फंक्शनलिटी ऐड करना है, वो है लिस्ट डिस्प्ले। अगर आप 25 के हो तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा इनहेरिटेंस में, लेकिन अगर 24 के तो इजीली ग्रास्प होगा। जिन जिनको इनहेरिटेंस हुआ है सर अलग अलग टेबल के लिए अलग क्लास बनानी पड़ेगी। यस, अलग अलग क्लास, अलग अलग टेबल का अलग अलग क्लास, क्योंकि यहाँ पे ये टेबल को आप ये कर रहे हो ना एडमिन पैनल में रजिस्टर